Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Bring More English. Hope you guys must be doing well and must be healthy and must be hunky dory. So today's lecture, like last time, what did I teach you? क्या मैंने आपको पढ़ाया था? I taught you present simple in passive. I explain you about it. Why do we need to convert active into passive? कि क्यों हमें active को passive से convert करने की ज़रूरत होती है? And I taught you about passive, that how can you make the simple passive? कि passive को किस तरीके से बनाते हैं? And I also inform you that what was the reason behind that. कि why do we need to convert active to passive? कि हम इसको convert क्यों करते हैं? The most important reason I told you that we prefer to hide the subject of active. हम क्या करते हैं? हम एक्टिव के सब्जेक्ट को छुपाते हैं जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. सो इन दिस क्लास, लाइक इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड आई विल बी टीचिंग यू दैट हाउ कैन यू मेक द पैसिव इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ऑफ कोर्स यू मस्ट बी अवेयर अबाउट एक्टिव. एक्टिव के बारे में आपको पता होगा. इन द प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पैसिव. कि पैसिव वो होता है, लाइक इट टॉक्स अबाउट व्हेन समथिंग इज बीइंग डन टू समवन और समथिंग, कि कोई चीज कोई काम किसी के जरिए किया जा रहा होता है. ठीक है, सो इट कम्स इन पैसिव. Now we are going to come into the formation, like as you guys can see already I have written present continuous. Formation is subject is MR. Is MR was there in present simple. Present simple में भी is MR हमने पढ़ा था. और उसके बाद being. Additionally we have to put being in continuous. आपने याद रखना है जब हम present continuous लगाएंगे तो उसके BEING being आपने जरूर लगाना है. Then verb third form. Already I mentioned this thing that we will always use verb third form in the passive, even though if it's a modal verb or if it's anything. अगर वो modal verb में हो और किसी भी चीज में हो, we have to use third form, verb third form of verb. Now by an object. Now you guys can see the negative and interrogative, and now we are going to make the simple sentences. Like suppose if I am saying to you, I am teaching you. So how can you translate, like how can you convert this sentence into passive? कि कैसे आप इसको passive में convert कर सकते हो? Already you guys were aware जो object होता है वो हमारा subject पे आता है active का. So then it becomes subject, just like you are. You के साथ are लगता है, that's why I have put are, is MR. You के साथ are लगता है. And then after you are being, I'm supposed to put being. You're being taught. Third form I am using, you're being taught, because teach, taught, taught. Third form is taught. You must be aware about forms of verb, otherwise you will face a lot of problem. आपको forms of verb के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप बहुत problem face करते हो. You're being taught by किसके जरिए? आपको किसके जरिए पढ़ाया जा रहा है? मेरे जरिए, me. So I जो है यहाँ पर subject है, जब इसको object में convert करेंगे, so it will become me. ठीक है? It will become me. जब I है तो ये me बन जाएगा. जिस तरह से अगर मैं बोलूँ like they are meeting us, वो हमसे मिल रहे हैं. they are meeting us, हमसे मिला जा रहा है उनके जरिए. even though I will also tell you that how can you make the direct passive. there is no need to use object. I mentioned this thing. जब भी need होती है आपको, जैसे by me, जब भी need होती है, compulsory होता है, important होता है, then you can use by me, by her, by them. otherwise direct passive I will be telling you as well after this. ठीक है? They are meeting us, वो हमसे मिल रहे हैं. अब यहाँ पे us जो है object है. when it will go into subject तो ये हो जाएगा we. we are के साथ are लगता है. we are उसके बाद क्या आएगा? being will come with every sentence. We are being, and after that what is the third form of met? Met. we are being met by them. them क्यों लगाया? because they is subject. when it will jump into object so it will become them. जब ये subject की जगह पर है, जब ये object की जगह पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? them बन जाएगा. so this is how you guys can convert active into passive in present continuous. With the help of formation you guys can easily convert it. now I am going to ask multiple questions from you. So guys, you guys can see more sentence over here. We are eating biryani. अगर मैं कहूँ हम बिरयानी खा रहे हैं, so how can I make the passive of this sentence? Of course, बिरयानी जो होगी वो आपकी subject की जगह पर आ जाएगी. Just like biryani is, you guys are aware about the formation. मैंने पहले ही formation बता दी थी. बिरयानी is being eaten. अब उसके बाद क्या आएगा? By. बिरयानी is being eaten by
अस, क्योंकि वी जब सब्जेक्ट की जगह पर होता है और ऑब्जेक्ट पे आता है तो इट बिकम्स अस। इसी तरह से ही इज बीटिंग देम, वो उन्हें मार रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि आप ही को ना लगाएं, सिर्फ लगाएं कि उनको मारा जा रहा है। तो कैसे बोलेंगे? दे, देम है वो ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? दे आर बीइंग बिटन, दे आर बीइंग बिटन इन दिस वे। अब इसी तरह से आर पुलिस कैचिंग थीव्स, आर को लगाया बिकॉज इट्स अ प्लूरल। पुलिस जो होता है वो प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर पुलिसमैन और पुलिस वुमेन, यू कैन से आर पुलिस कैचिंग थीव्स। क्या पुलिस चोर को पकड़ रही है? डेलिबरेटली आई आस्क यू इन इंट्रोगेटिव, मैंने जानबूझ के आपसे इंट्रोगेटिव में पूछा था। तो अब इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब आ गया थीव्स। अब ये जो होगा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट में जाएगा मगर इंट्रोगेटिव में, जस्ट लाइक आर थीव्स, आर थीव्स बीइंग कॉट। अब बाद में क्या आएगा? बाय पुलिस, ठीक है? क्या चोरों को पकड़ा जा रहा है पुलिस के जरिए। आई ऑलरेडी मेंशन, जहां पर आपका जरूरी हो लगाना बाय पुलिस या बाय अस, वहां लगाएं, जहां जरूरत नहीं हो वहां नहीं लगाएं। अब इसी तरह से आई एम बाइंग अ कार, अब इसमें आपने सब्जेक्ट को हाइड कर देना है, आपने सब्जेक्ट को छुपाना है। कैसे कहेंगे? कार को खरीदा जा रहा है, कार को खरीदा जा रहा है। हाउ कैन वी से? कार इज बीइंग बॉट, ठीक है? सिंपल, मैंने और सब्जेक्ट नहीं लगाया। इफ आई पुट द सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? कार इज बीइंग बॉट बाय मी। बॉट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बाय, आपने थर्ड फॉर्म का पता होना जरूरी है। ही इज नॉट ड्रिंकिंग द बेल, अब मैंने इसमें ही नहीं लगाया, मुझे ही हाइड करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? द बेल इज बीइंग रंग। सिंपल, बेल को बजाया जा रहा है, रिंग, रैंक, एंड थर्ड फॉर्म इज रंग। यू आर ड्रॉइंग अ मैप, अब मुझे यू को हाइड कर देना है, सिर्फ लिखना है कि मैप को खींचा जा रहा है, मैप को बनाया जा रहा है। अ मैप इज बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ ड्रॉ इज ड्रॉन, ठीक है? इन दिस वे यू गाइस कैन यूज इट, like in this way you guys can make active to passive। मगर students still get confused कि हम इनको passive, active to passive we can easily do it, but कभी कभार when we get passive, like when we get the sentence of passive, so over there we get confused at how can we convert into active। वो भी आसान है, I am going to tell you, like so you guys can see that I have written the sentence in passive and then we will convert it into active। अब हम इसके passive sentence को active में convert करेंगे। It's quite easy, it's not that much difficult, but one thing is important that you must be aware about formation। आपको formation का idea होना चाहिए। Just like हम passive में जब present continuous बनाते हैं, we must remember that हम being use करते हैं और third form, but when we जब हम active में करते हैं, so I think you are aware, just like I am learning English, तो इसमें क्या use कर रहे हैं? Subject is MR और verb ing form। So this thing you must be aware। तो बहुत ही simple है, food is being eaten by him। अब मैंने आपको ये बता दिया था जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ का, वो इसी तरह से वो ऑपोजिट में चला जाएगा सब्जेक्ट में, और बहुत ही आसान है। जैसे कि इसकी मतलब क्या हो गया? फूड को खाया जा रहा है उसके जरिए। अब हम इसको एक्टिव में उर्दू में कैसे बोलेंगे? वो फूड को खा रहा है, सिंपल। अब ही इज ईटिंग, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंपल, बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा एक्टिव में, रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरह से आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तुम्हारे जरिए। तो इसको हम अगर हम बोलेंगे पैसिव एक्टिव में, तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो कैसे बोलेंगे इसको? डायरेक्टली हम बना सकते हैं, यू आर टीचिंग मी इंग्लिश। अब जब आप डायरेक्टली कह सकते हो, इसको एक और सेंटेंस में कह सकते हो, यू आर टीचिंग इंग्लिश टू मी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द टेबल्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय देम, टेबल्स को उनके जरिए नहीं खरीदा जा रहा है। तो इसको जब हम एक्टिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा? वो टेबल को नहीं खरीद रहे हैं या वो टेबल को नहीं खरीद रहे हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ का, ये सब्जेक्ट में चले जाएगा। जस्ट लाइक दे आर नॉट बाइंग, क्योंकि बाइंग क्यों लगाया हमने? बॉट जो है जो उसकी आईएनजी फॉर्म होगी वो बाइंग होगी, बाय बॉट और बाइंग जो फोर्थ फॉर्म कहलाती है ये। दे आर नॉट बाइंग, और उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आ गया, द टेबल्स।
वो टेबल्स को नहीं खरीद रहे हैं। इन दिस वे द लास्ट सेंटेंस इज हियर, आर द चिल्ड्रन बीइंग गाइडेड बाय यू, मतलब क्या बच्चों को तुम्हारे जरिए गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है, रहनुमाई की जा रही है। सो इट इज इन, रिमेंबर दैट दिस सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव में है। सो इंट्रोगेटिव के लिए हमें इंट्रोगेटिव की एक्टिव की फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म, पहले इज एम आर आएगा, तो यहाँ पे यू है, जब इसको हम ऑब्जेक्ट में लिखे सब्जेक्ट में लिखेंगे एक्टिव में, तो हम यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, आर यू, क्लियर, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव में पहले क्या लगाते हैं, इज एम आर, तो यहाँ पे यू के साथ आर आता है। आर यू गाइडिंग, वर्ब क्या है हमारा, गाइड, आर यू गाइडिंग द चिल्ड्रन, तो ये आपका बन गया इन पैसिव। सो इट्स नॉट दैट मच like difficult, it's quite easy. Simply is that if you remember the formation, so it will be very easy for you to make the sentence. आपको अगर formation याद है, so you can easily make the sentences into active to passive और passive to active. It's not a big deal. But मेरा last question ये है, मैंने आपको previous present simple में समझाया था, we never, if we don't have subject, if we don't have object, so we cannot convert that sentence into passive. अगर हमारे पास active में object नहीं होता, तो हम उसको कभी भी किसमें convert नहीं करते हैं, passive में convert नहीं करते। मगर अगर मैं लिखूं I shout loudly, तो क्या यहाँ पे आप मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है मुझे? अब अगर दिख रहा है, so I would like to ask this thing, but I will first tell, because maybe in the next video I can ask the quiz, but right now I am supposed to tell you I shout loudly. यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो लाउडली है ये कहलाता है एडवर्ब। तो जब भी हमारे पास एडवर्ब या एडजेक्टिव और एनी अदर थिंग्स आए, तो उनके साथ भी हम नहीं यूज कर सकते। जिस तरह अगर मैं लिखूं आई शाउट एट यू, ठीक है। सो अब इसका मैं क्या बनाऊंगा, यू आर शाउटेड बाय मी। तो यहां पर क्यों? क्योंकि ये यू जो है एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है। आप सोच रहे होंगे एट, उसका कोई इश्यू नहीं है, एट जो है एक प्रपोजिशन है, वो मैंने उसमें एक्टिव में यूज करा है, बट व्हेन यू विल कन्वर्ट इनटू दिस अ पैसिव, सो देयर इज नो नीड टू यूज एट। यू आर शाउटेड बाय मी, तुम्हें चिल्लाया जाता है मेरे जरिए, ठीक है। तो आप अगर बाय हटा दो, मी हटा दो, तो तब भी सेंटेंस एक्यूरेट होता है। मैंने बताया था दैट द पर्पस ऑफ टू मेक द पैसिव इज to hide the subject of active. I hope you must have got the idea. So inshallah we'll meet in next video. Till over here, take yourself, Allah Hafiz. Still, if you have any question, you guys can do the comment, but I would like to ask verbally one question. Suppose if I say he runs fast, so now you guys will give me the answer in the comment section, that can we make the passive of this sentence, like he runs fast, yeah, he is running fast, is it possible to be made in the passive? So you guys will tell me. Inshallah we'll meet in the next video. Till over here, take yourself, Allah Hafiz guys.